Ravindranath Tagore once noted that while the beauty of the Kashmir Himalayas kindles romance, the sublime majesty of those in Uttarakhand evokes reverence and spirituality. Indeed, this land, aptly called Devbhumi, is replete with the symbols of the divine. And these symbols, from the sacred Har Ki Pauri at Hardwar to the innumerable temples, small and large, ancient and new, scattered all over its hills and valleys, inform us that spirituality has always been central to the lives of its people. It is here, perhaps more than at any other place in India, that one realizes the importance of linking economic development with culture and spiritual values. Thus, the water harvesting project that IFA is supporting in Uttaranchal is aptly named Himalayan Jal Sanskriti. गणेश बनाए हैं, सूर्य देवता बनाए हैं, उनमें दूब रखी है। तो दूब के बारे में ये होता है कि इसका छोटा सा तिनका भी कहीं बच गया, वो फिर से हरा हो जाता है बरसों बाद में। तो ये कल्पना है कि भाई जिस तरह से ये दूब तुम हरी रहती हो, इसी तरह से हमारा ये नौला भी हमेशा हरा भरा रहे। तो ये अपनी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बहुत गहरा भाव लोगों का था। This past winter, Surekha and I traveled to Uttaranchal to learn more about this project and the background in which it is taking place. Our visit started in Dehradun, where we joined Dr. Ravi Chopra, the president of People Science Institute, the nodal agency that is coordinating this project. From here, it is a 9-hour drive through the Himalayas that offers wonderful scenery but becomes increasingly challenging, particularly towards the end, where the road is merely a wide dirt trail. Our destination is Ufrekhal, a small hamlet at 6,000 feet, and the warm hospitality of the delightful Sachidananda Bharati, a recipient of the IFA Jal Sanskriti Fellowship. उफरैखाल जो है अपने में ये दूधातोली क्षेत्र में आता है ये, और दूधातोली जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जो पूरे उत्तराखंड का मध्यस्थ है, 2000 फीट से और 10,500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। 5 बड़ी नदियां यहाँ से जमाने में ये अपने इन सदार नेरा नदियों को इसलिए बना के रख सका था क्योंकि इसमें खूब हरे भरे वन थे। ये वन धीरे धीरे कम हुए और इन सन 80 से हमारी जो एक संस्था है दूधातुली लोक विकास संस्था, इसी हरियाली को और पानी के जीवन को लौटाने का काम कर रही है। For the next day or so, we will visit the surrounding villages to see how they are using IFA support to become self-sufficient in water. Water is the essence of life, and in the mountains, its availability is literally a matter of life and death. Sadly, over the last century, this land of lofty peaks and perennial snows, source
of so many of our plentiful rivers has come to be a water scarcity area. Widespread loss of forest cover has been a major factor. It began with the ruthless exploitation of the colonial era. The hilltops of the district headquarters of Pauri are famous for the fancy bungalows meant to provide the elites of the British Raj with what were once considered to be some of the finest views of the Himalayas. But there was an empire to be won, and for its railroads and warships, the Raj needed the lumber more than it needed the scenery, and it cared very little for the ecosystem or for people's livelihood. Today, the peaks are still there, but one can see huge swaths of mountain ranges, denuded of all vegetations, standing as sorry monuments to colonial plunder. Post-independence policies have done little to reverse this slide. Such policies, though often grandiose in design, are typically short-sighted and are made with little knowledge of the ground realities or people's needs. Callous management has made things worse. For example, the official response to deforestation has been the widespread planting of pine trees. It's not a jungle, it's a plantation. प्लांटेशन है हाँ, इसके नीचे आप देखेंगे from here you can see so clearly कि इसके नीचे कोई undergrowth नहीं है. बिल्कुल खाली. There's nothing to bind the soil. ये अपने अलावा किसी को होने ही नहीं देता. हाँ. Whereas in the natural jungles ऊपर और बांज और उतीस और ये जो इनके तिलौंज वगैरह के जो हैं पेड़ बुरांस उसके नीचे तो कई तरह की पत्तियां कई तरह की वनस्पतियां आपको मिल जाएंगी. ये चौड़ी पत्ती का चमचमाता हुआ ये अपने हिमालय का वास्तविक पुराना वृक्ष है जो यहाँ की प्रकृति के अनुसार है. अच्छा. और ये चीड़ इसके सामने ठीक बगल में चीड़ का जंगल है जो ये बिल्कुल सरकारी नीतियों के तहत यहाँ लगाया गया है, जिसने यहाँ के घास पानी को सुखाया है, जमीन को ऊसर बनाया है, अम्लीय बनाया है, और इसको धीरे धीरे हटाने का काम भी अब हम कर रहे हैं. अगर हिमालय को बचाना है तो यहाँ के वही पेड़ यहाँ पर लगाने होंगे जो इसके स्वभाव के अनुसार थे पहले से. लेकिन यूकलिप्टस और चीड़ की ये खासियत है कि गाय बकरी को वो पसंद नहीं है, तो अगर आपने एक पौधा लगाया तो वो बच जाएगा. तो वो फॉरेस्टर फिर ये बता सकता है कि मेरे लगाए हुए ये पेड़ हैं, ये मैंने लगवाए और ये सुरक्षित रह गए, मेरी वजह से सुरक्षित है. ये नहीं कहेगा कि बकरी और गाय को ये पसंद नहीं है. पसंद नहीं है. चीड़ में आग भी लग जाएगी तो चीड़ उसके बाद फिर हो जाता है. चीड़ आग के कारण स्वयं नष्ट नहीं होता और अपने साथ और जितने पेड़ होते हैं उनको नष्ट कर देता है. और ये दूसरा क्या कारण बताया आपने चीड़ लगाने का? दूसरा यह कि ये पेपर मिल के लिए चीड़ चाहिए, तो पेपर मिल तो लोगों की होती नहीं, पेपर मिल तो उद्योगपतियों की होती हैं. तो उद्योगपतियों के लिए भाई पूरा विभाग काम करता है, लेकिन लोग उन जंगलों को तैयार करना चाहते हैं जिनसे उनके घास मिले, जिससे उनको लकड़ी मिले, जिससे उनको खाद मिले, जिससे उनको फल मिले और जिससे उनकी गाय भैंस और पूरा जीवन का तंत्र जुड़ा हो. और वो सब उतीस से मिलता है. ये उतीस है, बांज है, काफल है, तिलंज है, अखरोट है, ये पेड़ हैं जो हमारे अपने हिमालय के पेड़ हैं. Since trees and water are intimately connected, the most troubling consequence of all this is the declining waters of our rivers and rivulets, some of which have simply dried up. जिन छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर वृक्ष लगे हुए हैं, जंगल कायम है, वहाँ पर पानी आपको बहता हुआ मिलेगा. और अगर कोई ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ जंगल कट चुके हैं और वो बिल्कुल बैरन हो चुकी है, वहाँ आपको सूखे नदियाँ मिलेंगी, बहता हुआ पानी मिलेगा. It is against this backdrop that people are deciding to take charge of their own resources and hence their lives. Here we learn of the remarkable story of the rebirth of a river and the reforestation of an entire mountain. An inspiring example of grassroots development for which Sachidananda Bharati has been the moving force. The science is simple.
Starting from the top of the mountain, dig a series of trenches or ditches to collect rainwater. Water will seep through and slowly the whole mountain will get saturated. Water will then start to seep out at the lower levels and will fill these ponds that will then have water throughout the year. Along these trenches, you plant trees, native trees. Initially, they will survive by drawing moisture from around the hole. But once established, they will act like sponges, holding water during rain and then releasing it slowly during the dry months. Eventually, you will have perennial water ponds all the way up to the top, sustaining a rich flora and fauna. You know, you slow the water down, and right at the peak of summer, you will have full ponds available to you. और अगर ये जंगल और पानी का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो अकेले वहाँ पर आप जितनी मर्जी श्रृंखलाएं बना लीजिए तालाबों की, वो बिना जंगल के नहीं पानी नहीं बनता इसमें। 87 में पूरे देश में एक 100 साल का सूखा आया था। उस 100 साल के सूखे में ये हुआ कि जो हमारा प्लांटेशन था वो भी सूख गया। तो तब हमने ये सोचा कि भाई प्लांटेशन को बचाने के लिए, अपने प्लांट्स को बचाने के लिए उसके आसपास अगर हम एक पानी का छोटा सा गड्ढा बना दें तो प्लांट कुछ दिन तक जिंदा रह जाएगा। तो पेड़ को बचाने के ध्येय से पानी का काम शुरू किया, और ये पानी का काम जब शुरू हुआ तो धीरे 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 हमने देखा कि पानी के काम का छोर जंगल के काम के से कई बड़ा है। और इसमें We accompany Sachidanand on a hike up this mountain for a first-hand look at this fascinating experiment. अभी मैं आपको एक बहुत ही सूखे पहाड़ पर ले जा रहा हूँ। ऐसे ही पूरी ये पहाड़ बरसों पहले था, और इस पर कैसे इसको फिर से हरा भरा और पानी का पहाड़ बनाया गया, इसको देखने के लिए हम आगे चल रहे हैं। ये जलतलाई आप देख रहे हैं, ये पानी का शुरुआती जलतलाई है और बिल्कुल रेत की जगह पर बनाई हुई है। शुरू के दौर में इसमें पानी रुकना ही नहीं चाहिए। ये देखो आप, बिल्कुल चट्टान है ये मिट्टी पानी जब चलता है तो अपने साथ कण लेते जाता है। हाँ। तो इसके जो कण हैं ये चिपकते जाते हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी परत बनती जाती है। फिर ऊपर से कहीं से थोड़ा सा भी अगर मिट्टी होगी उसको लेता आएगा, थोड़ी सी और चिकनी मिट्टी जम जाएगी। बिल्कुल। ये 4, 5, 6 साल बाद पानी की मिट्टी बनी है। अभी कोई 42 दिन से बारिश नहीं आई, और 42 दिन पहले से इस की बारिश के कारण देखो इसमें अभी नमी बनी हुई है। अब ये देखिए कि इसकी मिट्टी है, इसकी मिट्टी ये जो चिकनी मिट्टी है ना, तो इसके कारण इसका इस तालाब में पानी, ये पानी बना हुआ है। और ये घास आ गई इसमें, ये जो हरी घास है, ये मेडिसिन भी है, ये मेडिसिनल प्लांट है ये। और ये उन्हीं तालाबों में आता है जो हमेशा 12 तालाब पानी रहता। ये देखो कितनी, तो ये पानी की कारपेट है, वाटर कारपेट। सॉइल के ऊपर जो एक कारपेट है, ये वाटर कारपेट है। ये स्पॉन्ज की तरह ये सारा, ये देखो नमी कितना है, ये गीलापन आ गया मेरे हाथ में। ये पूरा अपना पानी को बचा कर रखता है। तो इसकी जड़ों से और इससे सब मिलकर के पानी, और फिर ये बना। हलचल मचाई हुई है उसने, बिल्कुल। जहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम सूखा, एकदम ये देखो जैसी वो रिस थी वैसा था। और ये जलबंद है, मानी ये ऊपर के बहुत सारी जलतलायों का पानी जहाँ पर से एक निचोड़ जैसा बनता है, वहाँ पर एक लंबी सी एक दीवार बना देते हैं, इसको हम जलबंद कहते हैं। तालाब है, उलो का जो वो है, ट्री है, उलो ट्री से वो नदी बन गई, रिवर वहीं से स्टार्ट हो गई। रिवर दिख रही है। हाँ, गाढ़ गंगा तो यही है गाढ़ गंगा। चलो, it was flowing water. In the final analysis, what this team of few dedicated workers and a handful of rural households has accomplished is nothing short of a miracle. A perennial river named Garh Ganga in place of Sukharala, a stream that, as the name implies, had dried up years ago, and a lush, rich and productive forest where once there was a barren mountain range. The value of this miracle goes far beyond itself. एक पानी बढ़ता है तो गंगा जी का पानी बढ़ता है। अच्छा। और गंगा जी का पानी बढ़ता है तो अपने देश का प्राण रेखा बढ़ती है, क्योंकि गंगा जी के किनारे ही अपने देश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, जिसमें अन्न उगता है और जिसके अन्न से पूरा भारत पलता है।
इसलिए एक तरह से ये पूरे भारत की सेवा है। नदियों को जोड़ने की योजना है 56,000 करोड़ रुपए की। हमारा ये कहना है कि भाई नदियां तब तो नदियों को जोड़ने से पहले नदियों को जिंदा रखने की योजना बनानी होगी, और नदियां तब जिंदा रहेंगी जब हम उनके स्रोतों पर इस तरह के तालाबों का निर्माण करेंगे, जंगलों का निर्माण करेंगे, जिनसे उनमें पानी हमेशा बहता रहे। What all went into making this possible? Material support is clearly needed, although all they had was a $1,000 yearly fellowship. Inspired leadership is crucial, as is the ownership and involvement of the rural community itself. यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल खाली और बंजर जगह बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जब गांव के लोगों ने इसको बचाने का काम शुरू किया तो इसमें घास भी पनप रहा है, जंगल पनप रहा है, पानी पनप रहा है, और इसके नीचे बिल्कुल पानी का एक स्रोत बन रहा है। और ये सामने चीड़ का जंगल है, लेकिन गांव की एक छोटी सी दीवार ने जब इसको आग से भी बचाया है, तो गांव के लोग जिसमें जुड़े होते हैं वो चीज़ सुरक्षित होती है। यहीं पर कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई टेढ़ा है, कोई कैसा है। इसका कारण ये है कि ये किसी सरकारी प्रोजेक्ट से नहीं बने हैं और किसी एस्टिमेट से नहीं बनाए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट में आपको 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा बनाना होगा तो ही तुमको 2,000 रुपये मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारी छुट्टी। तो ऐसे जमीन थोड़ी किसी के प्रोजेक्ट को दे करके भगवान ने बनाई है, जमीन तो कुदरत ने अपने तरीके से बनाई है। तो इसलिए उसमें तालाब भी लोगों ने अपने ढंग से बनाए और इसीलिए ये टिके हुए हैं। देखो, गाँव का अर्थ ये है कि किसी तालाब को कहीं पर से किसी की मेंढ नहीं तोड़ी हुई है, कहीं कुछ नहीं। अगर गाँव में अगर प्रधान जी ने कोई तालाब बनाया, दूसरे दिन लोग उसको तोड़ देते हैं। आज आपने देखा गांव में प्रधानों के बनाए हुए तालाब कहीं टिके हुए? सब जगह लोगों ने कितनी बुरी तरह उनको तोड़ा हुआ है। ये जो घास दिख रही है, इसी गांव की घास है, और इस पे ये जैसे 3-4 महीने इस पे चौकीदारी करके इस घास को संभाल के रखते हैं। उसके बाद फिर जिसको जितनी घास चाहिए पूरा गांव आता है और वो घास फिर अपने हिसाब से एक गड्ढा रोज को उनको मिलता है। तालाब, तलाइयाँ और गड्ढे देखे, ये सब खुद बनाए जी, गांव के लोगों ने बनाए जी। पिछले 25 साल ना 20 साल तो ये सारी मेहनत है। ये 20-22 घरों की मेहनत है, और बड़ा इसमें एक मन की तैयारी है। जैसे अभी माने किसी के जंगल को हम एकदम से खोदने लग जाएंगे तो लोग ऐसे ही तो तैयार नहीं हो जाएंगे। अब तो एक काम फैल चुका, इतना बड़ा हो गया है, तो लोगों को समझाने में सहूलियत है कि भाई देखो, अगर हम इस काम को करते हैं तो घास जल्दी उगती है, हरियाली लौटती है, सिर का बोझा कम होता है। क्योंकि अगर जंगल नज़दीक बनता है तो महिला के सिर की बोझ की दूरी घटती है। ये जो गाटखर का जंगल है पूरा, इसमें करीब 1400 के आसपास तालाब है। 1400 के आसपास तालाब, और वैसे 15,000 तालाब हमने बनाए हैं। अच्छा। और 30 गांव में बनाए हैं पानी का काम, और 133 गांव में जंगल और संगठन का काम। It is this story that moved us to fund 5 Himalayan Jal Sanskriti fellowships 2 years ago. The focus of this work is the renovation and maintenance of another traditional water resource, the naulas. A naula is essentially a type of step well in the mountains. Basically what's happening is that all these mountain rocks, there are a lot of fractures or fissures under them. Water keeps moving through those fissures, comes out somewhere in a stream, somewhere in a spring. Now, it's not easy for people to go dipping into that stream to pull out water. So what they do is, they dig like a well over here. This is a small, short step well. It's not deep, it's a shallow dug well. It's about 8 feet deep, probably. So there are several fissures that will be coming into this well. And all those fissures will bring their water into this well. So it collects. अब इसमें मान दो कि सारे परिवार इस समय आके पानी निकालना शुरू कर दें तो ये खाली भी हो जाएगा, लेकिन कुछ घंटों में फिर भर जाएगा। Before they fell into disrepair and neglect in the last century, the naulas were the main source of household water
for these once flourishing communities. और इतना बड़ा काम है कि गांव उन पर बसे, गांव कोई नल पर नहीं बसे, गांव किसी तालाब पे नहीं बसा, पहाड़ का गांव, प्लेन के गांव तालाबों पे बसे, हर जगह तालाब थे, लेकिन यहाँ पहाड़ों के गांव नौलों पे बसे और वो नौले खत्म हो गए और उनको लौटाने का काम, यानी पूरे पहाड़ में गांवों को लौटाने का काम और फिर से बसाने का काम है। ये तो बहुत बड़ा काम। We tracked down to 2 of the several villages where the local people, with the help of IFA funds and Dudha Toli Vikas Sansthan, have renovated existing nalas and built some new ones. We were received with great warmth and fanfare. We could see that the villagers are really excited about this experiment in democracy and self-reliance. This is not a new concept for them. It has been a part of their heritage and is very much rooted in their culture. क्षेत्र है, खासकर जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है और उसके साथ सटा हुआ गढ़वाल का क्षेत्र है, उसमें जो क्षेत्रीय देवता है वो गोलू देवता है। जैसे दक्षिण में तिरुपति बालाजी हैं और बड़े पराक्रमी राजा हुए और आज भी पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में इनको न्याय और न्याय का देवता माना जाता है, जो बिल्कुल न्याय देते हैं और प्रधान देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। तो इन्हीं के नाम पर ये नौला भी समर्पित है, पानी का जो जलकुंड है जहाँ पर अभी हम जाएंगे, जिस पर काम हुआ है। बड़ी यही जल संस्कृति है। अपनी संस्कृति में किसी नेता के नाम पर नौले नहीं हुआ करते थे, जैसे आजकल परंपरा हो गई, या किसी उद्योगपति के नाम पर रखने की प्रथाएं तब नहीं थी। अपने देवताओं को समर्पित करते थे काम को। Now, by dedicating it to a god, what they have ensured is cleanliness. अब उसको तो गंदा नहीं करेगा कोई, ठीक है ना? उसको एक मंदिर का दर्जा दे दिया, इसलिए वो स्वच्छता बनी रहती है। और अगर किसी को नहीं पता कि ये भाई वो है देवता का मंदिर है, तो ये जो एल्कोव्स बने हुए हैं, कई बार इसमें वो अभी तो दिया रखा हुआ है ना, मूर्ति रख देते हैं। अच्छा, now the local system is that you don't have a sculptor to make an idol for you, just put a stone over there. So if you look inside that alcove over there, there is a stone over there. That's good enough symbol that this is this structure is dedicated to a god. Bas. This village has 2 nalas that have been renovated. One had water but was in disrepair, whereas the other had simply gone dry. Why? Well, for the answer, we had only to look at the pine plantation on top of the hill. इसकी कोई जानकारी है कि वो वाला नौला कब बना होगा? है, 65-66 में। और फिर उसमें पानी था तब? पर कब से पानी उसमें गायब हो गया? जब से चीड़ नहीं, पैदा हुए, किस वर्ष? कुछ अंदाजा बताइए। चीड़ लगा हमने 54-55 में। ये पेड़ हम तो छोटे छोटे पेड़ थे, तब तो पानी था। जब पेड़ बड़े होने लगे पानी। Bringing water back to this nala required the same process of digging trenches in order to increase the water retention of the mountain.
का टैंक नहीं तैयार हो सकता इतने अच्छे तरीके से। और लोगों का सरकार अगर किसी नौले को आज मरम्मत के लिए भी देती है तो यहाँ 50,000 रुपये से कम उसके लिए कोई रकम नहीं है। अपने यही ब्लॉक में भी नौले बनाने लगे लोग, कुछ काम आने लग गया है। 50-60 हज़ार रुपये से कम की रकम उसके लिए नहीं है। और उसको भी एक आदमी तैयार करेगा या 2 आदमी तैयार करेंगे। गांव ऐसे नहीं जुड़ता है। अगर हमने ये इसके लिए 10,000 माने इनको दिया कि भाई नौला बनाना है 10,000 है, तो गांव के प्रत्येक आदमी को पता है कि 10,000 आया है। उसमें कोई एक आदमी तुम्हारे ऊपर ठेकेदार नहीं रखा या कोई ऐसा नहीं रखा तुम्हारे लिए कि भाई वो 10,000 में से इतना 20% कमीशन है या 10% कमीशन है या 2 रुपया कमीशन है। हाँ, चाहे 2 रुपया बैठा तुमको चाहे 200 रुपया बैठा, लेकिन तुम्हारे पास पवित्रता से आ गया। तो ये सबसे बड़ी ताकत है इन कामों की कि हम अपने काम में बिल्कुल स्पष्ट हों और ईमानदार हों, है ना। अब वो चाहे जितना भी बैठे 200 रुपये बैठ जाए, 2 रुपये बैठ जाए। और इसीलिए देखो, अगर सरकार ने काम ठेकेदारी से काम होता तो केवल ठेकेदार के लोग यहाँ पर होते, गांव नहीं होता। पर चूंकि ये गांव, पूरे गांव ने मिलकर आपने काम किया, इसलिए आज कोई तुम सब लोग आगे। अगर एक आदमी को इसमें लाभ होता, मैं कहता एक आदमी को आपको मैं काम दे देता, ये 10,000 का काम है ये आपको, और आप इसमें 2,000 गांव को दे दो, 2,000 तुम खाओ, 2,000 मैं खाऊं, तो आज गांव वाले थोड़ी आते। लोग कहते यार वही जाए वहां जिसने इसमें 2,000 खाए हैं। Here we sit down to learn more of this work from those who made this happen. नौले को बनाने में आप में से कितने लोगों ने योगदान दिया? सबने। और कितने लोग और हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं? गाँव इतना ही है, इतना ही गाँव है, सब इतना ही गाँव है। ये मेरा पूरा योग ठीक रहना। सब महिलाओं ने किया, सबका। अच्छा, तो ये नौला बनाना आपने कब शुरू किया था? जून जुलाई में। कितना समय लगा इसको बनाने में? एक आध महीना। और जो खुदाई का काम करना था वो किसने किया? सबने मिलकर किया। जब आपने इसको खोदना शुरू किया तो पानी कब मिला? तुरंत मिला कि थोड़ी? ये वाला इसमें तो पानी था ना, पर इसमें बाद में मिला पानी, जब हमने खड्डे खोदे ना। अच्छा, तो उसके कारण तो यहाँ इस पर कोई खर्चा भी हुआ था आपका? सीमेंट नहीं, अभी तो 10,000 रुपये तो आपको नगद नहीं, इन लोगों को तो 20 रुपया रोज बैठा। अच्छा, इन्होंने इतना बड़ा काम किया क्योंकि खड्डे खोदने में भी कि वो तो खड्डे खोदे तो हाँ, वो तो काफी बड़े होते हैं। हाँ, बड़े खड्डे खोदने में अब ये पत्थर लाने हैं, पत्थर कितने दूर से लाए, फिर बल लाए, दूर से लाए, सिमर लाए। अच्छा, आपका घर कितने दूर है यहाँ से? कितनी दूरी से आते हो पानी लेने के लिए? कोई इधर से आते हैं, कोई उधर से आते हैं नीचे। अच्छा, 20-22 परिवार हैं घर में। 20-22 परिवार। दिन में कितनी बाल्टियाँ या कितने घड़े यहाँ से निकालते हैं? यहाँ से तो कोई हिसाब ही नहीं है। अंदाजा, एक अंदाजा दे। 35-40। हाँ, और एक घड़े में कितना होता होगा? 15 लीटर, 20 लीटर। अब आप हम इन दोनों को, ये पति पत्नी दोनों डॉक्टर भी हैं, तो हम इनको कहेंगे कि जो विश्व बैंक है ये उनको जाकर ये कहानी सुनाएं कि कैसे हमने तो 10,000 रुपये खर्चे होंगे, इनके यहाँ रुपए नहीं होते, इनके यहाँ डॉलर होते हैं। तो हम ये कहें कि लगभग $220 में ये आपका नौला बना। और $220 में से अब करीब 20-22 परिवार को फ़ायदा होता है। रोज़ यहाँ से कम से कम भी तो 20 या 30 लीटर पानी ले जाते हैं। The meeting ends with a strong vote of appreciation for the women and their leader. तो आप सबको हमने तो हमेशा उसी नंदा भगवती के रूप में माना, और आप सबकी मेहनत से ये तैयार हुआ है, इसलिए इसमें वो ताकत है जो नंदा की ताकत होती है। बहुत अच्छा काम करेंगे।
उन गाँव को एक इसी में से एक इज्जत राशि पुरस्कार राशि दी जाएगी, वो 1100 रुपये। श्रीमती सरस्वती देवी महिला मंडल की अध्यक्ष है। और हम सबकी शुभकामनाएं ये हैं आप सबके लिए कि आप ऐसे जुड़े रहोगे, काम करते रहोगे अपने गांव के लिए, तो क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। We continue our journey to the next village where an even larger reception awaits us. It turns out that we have been chosen for the inauguration ceremony of their Nala. The dedication is also a chance for celebration. It is followed by a communal feast of halwa and merrymaking. At the end of the day, the whole village gathers in the Panchayat hall for some parting words. कृपा है, इसमें तो दीदी बुलियों का ही रोल है। जहाँ दीदी बुलियाँ होंगी, जहाँ माताएं संगठित होंगी, उस इलाके को कौन पीछे कर सकता है? इसलिए आप सब लोग, आप सब दीदी बुली, आप माँ बहन जितना भी, आप अपनों एक अच्छो प्यार प्रेम बना के रखें, एक अच्छा संगठन बना के रखें। और जन हमारा देश की नंदा सबसे ऊंची चोटी भारत की, उन तो संसार की, पर वो जो ऊंची चोटी हिमालय चूर नेपाल में अलग, पर भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। तो उन्हीं नंदा का रूप में जो आप जो काम करना चाहिए, ये भी एक दिन देश को सबसे माथा को काम होलो, सबसे उच्चो काम होलो, ये हम तो समझना चाहते। और ये तभी होलो कि जब हमें माँ अपनो एक संगठन 10,000 की अगर या 10-5,000 की जो भी मदद आ रही है, मतलब उसको आप लोगों ने ऐसा समझना है कि एक प्रसाद है, एक इनाम है, एक पुरस्कार है। अगर कोई नहीं भी देता तो हमने तब भी अपने नॉलेज ठीक करने थे, अपना पंजरा ठीक करना था और ठीक करना है। यहाँ का जैसे आकाश, पहाड़ियाँ सुंदर है, वैसे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं।
आपने हमारा स्वागत किया। हम यहाँ से आपकी तरफ से बहुत सारा उत्तेजन लेके जाते हैं। आपको देख के आप कैसा परिश्रम करते हैं, एकजुट से प्यार से अपने गांव को आगे विकास की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व है और कुछ सीखने का है इसमें। मैं ज़रूर इसके बारे में जाके मेरे सब सहेलियों को, वहाँ साथियों को बता दूंगी। और आपका ये हमें क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, ये हमें यहाँ आने की अवसर मिला और आपके इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में, मैंने स्वयं जल को नाम दिया नाग। मैंने ये नाम दिया, और क्योंकि इसमें मैं बसता हूं, क्योंकि इसमें मेरा आयन है, इसलिए मुझे नारायण कहते हैं। तो वो जो नौला है, वो नौला भगवान का घर है, विष्णु का घर है, नारायण का घर है, इसलिए वो किसी मंदिर से कम नहीं है। आप ये मत समझें कि ये छोटा सा एक कुआं है, ये एक मंदिर है। और जैसे आप मंदिर में स्वच्छता रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, वैसे ही नौले को अच्छी तरह से सजाकर उसके आसपास सुंदर फूल लगाइए, वहाँ कुछ घास हो, थोड़े वृक्ष हो, ताकि लोग जाएं तो उनको पता लगे कि ये पुण्य स्थान है। तो मैं फिर से आप लोगों को बधाई दूंगा कि आपने बड़ा पुण्य का काम किया है। अग्नि पुराण में श्री विष्णु कहते हैं कि जीवन में अगर आपको कोई पुण्य का काम करना है तो मंदिर बनाने के साथ साथ एक जलाशय भी बना दीजिए, एक कुंड बना दीजिए। इसीलिए हमारे पुराने जितने भी मंदिर हैं उनके आसपास पानी के स्रोत हैं, कुंड हैं, नौले हैं और आज तक जीवित हैं। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की बड़ी पुरानी परंपरा है। इसे अगर हम जीवित रखेंगे तो हमें कोई कमी नहीं होगी। As the sun winds down on the horizon, it is time for goodbyes. People's Science Institute is a highly regarded NGO in Uttaranchal, but its impact goes far beyond their own work. This became quite evident to us when on our way back we ran into a group of youth who had come to know that Dr. Chopra was in the area and were eager to run their ideas by him. कृषि प्रदर्शन क्षेत्र जो कि पारंपरिक खेती में उन्नतशील प्रजाति के जो बीज हैं, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो या मंडुआ हो, ताकि जो लोग इस परंपरा से हट कर के निराश होकर के अपना रुख प्लान की ओर कर रहे हैं, उनके परिवार, युवाओं के परिवार, युवा साथी, वो इस ट्रेडिशनल जो खेती है उसमें उनका विश्वास बढ़े कि यही खेती, इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण हो सकता है। और इस कार्यक्रम को हम इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर भी इसको ले जाएंगे। साथ ही उनका यहाँ पर एक नर्सरी डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम है कि हम यहाँ पर फलदार वृक्षों से लेकर और पर्यावरण से जुड़े जितने वृक्ष हैं उनकी भी एक नर्सरी बनाएंगे, जो कि इस पूरे एरिया में कोई भी ऐसी नर्सरी नहीं है। यहाँ पर लोकल जो स्थानीय अखरोट है, ये आड़ू है, इस आड़ू की भी एक नर्सरी बनाएंगे ताकि हम यहाँ के ग्रामीणों को कम से कम मूल्य पर उनको वो पौध दे सकें और वो कि अपने आय के साधन को बढ़ा करके अपने को सक्षम और अपने आर्थिक स्थिति, अपने परिवार का पालन पोषण इस पर कर सकें। मतलब जो चीज़ें हम बाहर से वो करते हैं वो हम यहीं पे उपलब्ध करवाएं लोगों को, जिससे हमको ये लगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। लोग मतलब चाहें तो यहीं पे सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर से आए तब खाएं। जैविक खेती यहाँ हो सकती है,
सिर्फ लोगों को तरीका बदलना पड़ेगा अपना काम का थोड़ा सा हम लोगों को, और उसको शुरुआत हम खुद करेंगे। जब हम करेंगे हमको कुछ लाभ मिलेगा उससे, तो लोग भी हमसे कुछ इंस्पायर होंगे कि हाँ जी मतलब ये इन्होंने सही किया। अगर इस खेत में ये जैविक खेती द्वारा ये गेहूँ हो रहा है, इस गेहूँ पे हम बेहतरीन मेहनत करेंगे और इस पर अच्छा गेहूँ हो जाता है, तो हर आदमी उस मेहनत को करेगा, हर आदमी संपन्न हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये खाली ये हमारी ये जगह है, इन पे हम गड्ढे बना के उन पे फलदार वृक्ष लगाएंगे, उससे हमको एक तो पर्यावरण से भी सुरक्षा मिलेगी, बेहतरीन लोगों को खाने वाने के फल भी मिलेंगे। अगर लार्ज स्केल पे हमारे वो हो जाते हैं तो उससे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मिर्चें, मेरा गांव इधर जीवई है सर, ये बैजरू से 6 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो हमारे यहाँ मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। मिर्चें हम लोग जैविक मिर्चें काफ़ी पैदा करते हैं, तो सारी विदेशों को एक्सपोर्ट होती है वो मिर्चें, वो सीधे एक्सपोर्ट होती है। हम चाहते हैं कि लोग ऐसी खेती करें कि जिससे आय के साधन भी बन जाए, अपने खाने पीने का भी हो जाए और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। जैसे भाई जी ने कहा मंडुआ और झिंगोरा तो आजकल लोग खाते थोड़ी हैं, वो तो जानवरों को खिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तो गरीब लोगों का खाना है या जानवरों का खाना है। पौष्टिक आहार के पीछे कौन जाता है? बहुत कम। सही, लेकिन जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को पौष्टिक आहार खाना चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम भी उन्नत दिखाई दें। और उन्नत कौन है? वो जो शहर में रहते हैं, हम उनको मानते हैं। उनका घर अच्छा वो सीमेंट और स्टील का बनता है, हम कहते हैं हमारे ये पत्थर और मिट्टी के घर बेकार। वो पैंट पहनते हैं, इसलिए हम भी पैंट पहने। अब देखिए आप सब ने पैंट पहनी हुई, कोई भी पारंपरिक पोशाक में तो नहीं है मुझे छोड़कर, ठीक है ना? तो ये एक तरह का, या तो आप इसको एक तमाशे के रूप में देखें, परंपरा परंपरा परंपरा, ये तमाशा भी हो सकता है। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, भाई सबने ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम भी पीटेंगे इसको, हैं? कल से हमें भी कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा कहीं से, ये सब बकवास। या फिर एक, जैसे अभी हम आए ऊपर अपने ख्याल से, एक श्रद्धा से काम होता है, एक विश्वास से होता है कि नहीं मुझे पता है कि ये पौष्टिक है, मुझे पता है कि इसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसलिए मैं खुद पहले मंडुआ खाऊंगा, फिर मैं बकवास करूंगा कि बाकी दुनिया मंडुआ। कोई अर्थ नहीं। लोग केवल बातों पे नहीं जाते, आपके व्यवहार को बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं, उसको पहचानते हैं। असर तब होता है जब वो देखते हैं कि जो ये करता है, जो ये कहता है, वो करता भी है। तो इस बात का The enthusiasm of these young people is truly heartwarming. Out of them will emerge the future Sachidananda Bhartis. And for that, we will be indebted to the labors of Ravi and his colleagues. IFA can have the satisfaction of having played a small role.